Good morning, respected fathers of the Madipur Assembly, Vice Chancellor, Xavier University, Patna, the principals of Xavier College of Management and Technology, respected fathers of the St. George Estate, Registrar, Xavier University, Patna, from Vice Principal, St. Xavier's College of Management and Technology, honorable guests, esteemed faculty members, and my fellow mates. I, Amit Toko, student representative, Startup Cell, warmly welcome you all to today's session. Today, we are gathered here for a very meaningful and inspiring session titled Startup India Mission, Opportunity for College Students. The Startup India Mission is a flagship initiative of the Government of India aimed to promote entrepreneurship, innovation, and startups. For college students, it offers a powerful platform to transform ideas into successful businesses. This session is organized with the aim of motivating young minds to explore entrepreneurship, innovation, and self-reliance, and also encourages young minds to innovate, take initiatives, and explore entrepreneurship as a powerful career option. Friends, learning directly from experienced professors always leave a lasting impact. Today, we are privileged to hear from our esteemed guests who will guide us on how the Startup India Mission empowers students and support innovation. We welcome our guest, Mr. Anand Kumar Giri. He is seasoned learning and development professional with over 15 years of experience in the insurance industry. He currently serves as regional training manager at SBI General Insurance, Patna, and is fellow of the Insurance Institute of India, as well as a certified anti-fraud professional. And also, we are delighted to welcome our resource person, Mr. Dheeraj Kumar, a chartered accountant and cost and management accountant, CMA, and an experienced GST and income tax practitioner. He serves as a special visiting faculty at ICSI and is a regular expert speaker on All India Radio and Doordarshan Bihar. With his strong practical exposure and student-centric approach, he brings valuable insights into taxation, startups, and career opportunities. I request Father Dr. St. George Estate to felicitate Mr. Anand Kumar Giri. It's a small token of love from our side. आज हम लोगों को स्टार्टअप के बारे में पता करना है कि स्टार्टअप कैसे स्टार्ट करना है। आफ्टर कॉलेज सबको अपना अपना करियर स्टार्ट करना होता है। कोई प्रोफेशन में जाता है, कोई ओन स्टार्ट करता है, कोई फैमिली बिजनेस को स्टार्ट करता है। डिपेंड करता है आपके अपने ओन स्किल्स पे, आप कितने स्किल्ड हैं, आपको अपना इंटरेस्ट किसमें है। और बिजनेस स्टार्ट करना है कि करियर ग्रो करना है कि फैमिली बिजनेस में पार्टिसिपेट करना है। ओके, सबसे पहले हम लोग को डिसाइड करना पड़ेगा कि हम लोगों को किस सेक्टर्स में जाना है। तो स्टार्टअप के लिए सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये होता है आपका कि बेसिक्स आइडियाज आपको होने चाहिए कि हमें बिजनेस में जाना है तो क्या करने होंगे आपको। एंटिटी डिसाइड करने होते हैं। साहब लोग आप लोग को एंटिटी को पता होगा कितने एंटिटी होते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? पीछे से आवाज तो भाई कितने एंटिटी होते हैं? जब तक आप एंटिटी डिसाइड नहीं कर पाओगे तब स्टार्टअप स्टार्ट ही नहीं कर पाओगे कि मुझे इंडिविजुअल में करना है, पार्टनरशिप में करना है, एनजीओ के साथ करना है, फॉर्म खोलना है या कंपनी करना है या ट्रस्ट खोलना है। तो सबसे पहले आप लोगों को अपना डिसाइड करना पड़ेगा कि मेरी एंटिटी कौन सी होगी, इसके कंप्लायंसेस क्या क्या होंगे। जब तक आप ये डिसाइड नहीं कर पाओगे किसी भी स्टार्टअप को स्टार्ट नहीं कर पाओगे। स्टार्टअप स्टार्ट करना बड़ा इजी काम होता है, लेकिन उसको कंक्लूड करना, प्रॉफिट मेकिंग करना बहुत डिफिकल्ट जॉब होता है। जब तक आपके पास ये आइडियाज नहीं होंगे ना कि मुझे कौन सी चीज स्टार्ट करना है, इंडिविजुअल से करना है, मुझे सेल्फ को करना है या एनजीओ से करना है
या फिर कंपनी स्टार्ट करनी है या पार्टनर स्टार्ट करना है, फिर आप कैसे डिसाइड करोगे? तो सबसे पहले आपको एंटिटी डिसाइड करनी होगी कि एंटिटी मेरी कौन सी होगी। मेरी खुद की अपनी एंटिटी होगी या किसी के साथ मैं शेयरिंग करके करूँ या पार्टनरशिप करूँ। जैसे आपने एंटिटी डिसाइड कर लिया है, उसके बाद आपको आइडियाज को डेवलप करने पड़ेंगे। देखिए बिजनेस आइडियाज और बिजनेस मॉडल वो डिफरेंट होते हैं। फिर आइडियाज को डिसाइड जब तक आप नहीं करेंगे ना कि कौन से आइडिया मुझे करना क्या है, मुझे स्टार्टअप में करना क्या है और कैसे करना है, ये हो गया आपका जो आप डिसाइड करोगे, वो हो गया आपका स्टार्टअप आइडियाज। आइडियाज को मॉडल में कैसे कन्वर्ट करोगे, हाउ टू परफॉर्म द वर्क, ये डिपेंड करता है आप। तो आपको लीगल कंप्लायंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी काम को करने के लिए। जैसे जितने भी लीगल कंप्लायंस आपके हो गए हैं वो आपको डिसाइड करने पड़ेंगे। जैसे सपोज करो कि आपने कोई एंटिटी को स्टार्ट किया है, स्टार्ट किया है कि मुझे किसी प्रोडक्ट को लॉन्च करना है, किसी भी एक आइटम को आपने एक फॉर्म खोलनी है, जैसे आप यहाँ से पास आउट हो गए, आपको किसी भी चीज का स्टार्टअप करना है। कभी क्या होता है कि आदमी केवल प्रॉफिट मेकिंग की बात होता है, प्रॉफिट मेकिंग नहीं करना है, कंटिन्यूअस बिजनेस को रन कराना है आपको, उसके हिसाब से आपको काम करने पड़ेंगे। अगर प्रॉफिट मेकिंग होगा तो शॉर्ट पीरियड हो सकता है, ये लॉन्ग पीरियड कभी भी नहीं हो सकता है। तो इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन ऑफ एंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इंडिविजुअल को स्टार्ट कर रहे हो, उसमें क्या क्या लीगल कंप्लायंसेस हो सकते हैं, क्या क्या उसमें हर्डल्स हो सकते हैं, कितनी आपकी प्लानिंग हो सकती है, इसके हिसाब से आपको काम करने पड़ेंगे। अदरवाइज आपका बिजनेस कभी भी सक्सेस नहीं होगा। कभी भी आपका स्टार्टअप, इंडिया में जो स्टार्टअप आप पर्टिकुलरली मैं अपने स्टेट की बात करता हूँ, वो उतना ग्रो नहीं किया ड्यू टू लैक ऑफ प्लानिंग्स। आपने प्लानिंग ही नहीं किया। कभी कभी क्या होता है कि गवर्नमेंट का कंप्लायंसेस चेंज हो जाता है, नॉर्म्स चेंज हो जाता है, उसमें भी आपको अपने आप को सर्वाइवल करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अगर आप जब तक इसको मर्ज नहीं करोगे ना अपने प्लानिंग के साथ में, अपने कंप्लायंसेस के साथ में, कोई भी स्टार्टअप स्टार्ट नहीं कर पाओगे आप। इंडिविजुअल का करो, कंपनी का करो, सपोज करो कि मुझे बहुत छोटा ही सा काम करना है और मैंने कंप्लायंसेस ही बहुत ज्यादा कर लिया है, मैंने एक बहुत बड़ी कंपनी खोल लिया है, मैं इसमें हमारे इतने कंप्लायंसेस हो पा रहे हैं कि मैं कर नहीं पा रहा हूँ, किसी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट के यहाँ, किसी भी कंसल्टेंट के यहाँ मैं मूव करते जा रहा हूँ। तो अगर आपको लगता है कि जो रिक्वायर्ड कंप्लायंस है उतना ही करना, उससे ज्यादा कंप्लायंस करने की जरूरत नहीं है। सपोज करो कि एक मेरा स्टार्टअप मैंने स्टार्ट किया है, मुझे लगता है कि मैं ईच एंड एवरी ईयर मैं 20 लाख या 40 लाख से ज्यादा मैं सेल नहीं कर पाऊंगा। इनिशियली आपको ये लग रहा है, आपने एस्टिमेट कर लिया है कि मैं इनिशियली 6 मंथ 4 मंथ या 1 ईयर तक मैं इसको सेल नहीं कर पाऊंगा, तब तक आपको जीएसटी लेना इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, क्योंकि जीएसटी की जो लिमिट है वो फॉर द सर्विस सेक्टर इज 20 लाख एंड फॉर द आइटम्स इज 40 लाख। लेकिन आपने क्या किया कि आपने एस्टिमेट ही नहीं किया अपने बिजनेस को हमको कितना में स्टार्टअप करना है। आपने जीएसटी का कंप्लायंस ले लिया, आपने पीएफ ले लिया, आपने ईएसआई ले लिया, सारा कंप्लायंसेस आपने ले लिया है और आपका बिजनेस ही नहीं रन कर रहा है। तो केवल आप क्या करोगे, केवल कंसल्टेंट को फीस देते चले जाओगे आप। तो जब भी आप धंधे को स्टार्ट करो तो जो भी आपका कंसल्टेंट है उसको टैक्स फाइलर नहीं बना के बनाओ, टैक्स कंसल्टेंट बनाओ, टैक्स प्लानर बना के उनको काम करो। आप अगर आप स्टार्ट कर रहे हो धंधे को तो पूरी अपनी प्लानिंग बताओ। ये नहीं बताना है कि साहब हमको ये आप मेरा रिटर्न फाइल कर दो, मेरा जीएसटी फाइल कर दो, मेरा पीएफ फाइल कर दो, मेरा ईएसआई फाइल कर दो, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको डिसाइड करके बताना है कि सर मेरी प्लानिंग कहाँ है, हमको कहाँ पे अचीव करना है, मेरा टारगेट कहाँ पे है, मुझे इसको कहाँ पे लेके जाना है। जब तक आपका ये सोल मोटिव नहीं होगा तब तक आप किसी भी स्टार्टअप को स्टार्ट नहीं कर पाओगे। तो मेरा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव आप लोगों से यही रहेगा कि जब स्टार्टअप किसी भी धंधे को करना है तो आप अपने एंटिटी को खुद डिसाइड करो। सपोज करो कि कोई बड़ा काम करना है, आपको उसके लिए कंपनी की जरूरत पड़ती है, उसमें कितने मेंबर्स होंगे, कंपनी क्या क्या कंप्लायंसेस का काम करेगी, उसमें कितने कंप्लायंस की जरूरत पड़ती है, ये आपको डिसाइड करना है। उसमें पीएफ मुझे कब रिक्वायर्ड है, ईएसआई कब रिक्वायर्ड है, जीएसटी का रिक्वायरमेंट कब है, ये पहले आपको प्लान करना पड़ेगा। साहब मैं ये काम कर रहा हूँ, इसमें कितने 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 कंप्लायंसेस करने पड़ेंगे और ड्यू डेट कंप्लायंसेस के क्या होते हैं। ऑलवेज आप डिसाइड करोगे टैक्स रिविजन नहीं, टैक्स प्लानिंग। जब तक आप टैक्स प्लानिंग की बात नहीं करोगे तो टैक्स रिविजन करोगे तो आपका धंधा शॉर्ट पीरियड के लिए हो सकता है, लॉन्ग पीरियड में कभी स्टार्ट ही नहीं हो सकता है। तो किसी भी धंधे को स्टार्ट करने के लिए आप उसके पूरा गो थ्रू हो जाओ, उसको स्टडी करो। अब आप एआई का भी टर्म आ गया है, किसी भी चीज को आप एआई में डाल के देखते हो तो बता देता है कि प्रैक्टिकल इसका एक्सपोजर क्या है। प्लस जो इसमें इस जॉब में जो इस प्रोफेशन में है उनसे भी आप रिव्यू लो, इसमें क्या क्या हर्डल्स आ सकते हैं, सक्सेस करने के लिए क्या क्या उन्होंने क्या क्या वैसा काम किया है जिनके कारण वो फेलियर हुए हैं।
अगर जब तक आप डिसाइड नहीं करोगे, कोई भी स्टार्टअप को स्टार्ट नहीं कर पाओगे। ये छोटा स्टार्टअप भी क्यों नहीं है, कोई बड़ा स्टार्टअप भी क्यों नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि गवर्नमेंट के नॉर्म्स की वजह से आ जाते हैं। जैसे बिहार में क्या होता है कि हमारे क्लाइंट ने एक इंडस्ट्री स्टार्ट किया, लीगर इंडस्ट्री। गवर्नमेंट का नॉर्म्स आगे कि लीगर को सेल नहीं करना है, कंज्यूम नहीं करना है। बिहार में उतना बड़ा इन्वेस्टमेंट लगाया है, ये खत्म हो गया उनका। तो अब उनको क्या करना है, किसी को प्लान में चेंज करना है। उन्होंने कहा कि मैं कंजम्पशन बिहार में नहीं करूंगा, मैं आउट ऑफ बिहार उसको सेल करूंगा। तो जैसे ही अगर गवर्नमेंट के कोई नॉर्म्स के अगर चेंज होते हैं आपके पास, आपको उसी के हिसाब से अपने आप को प्लान करना पड़ता है। अपने कंसल्टेंट के थ्रू गवर्नमेंट के नॉर्म्स को हमेशा आपको अपडेट रहने पड़ेंगे। अदरवाइज जब तक आप अपडेट नहीं रहोगे, धंधा वही का वही रहता है, बिजनेस आपको कभी भी ग्रो नहीं करेगा। जो स्टार्टअप आपने प्लान किया है वो स्टार्टअप आपका स्टार्ट नहीं हो पाएगा। स्टार्टअप स्टार्ट ही नहीं होगा तो फिनिश भी नहीं होगा, वही आपका फिनिश हो जाएगा। तो इसलिए मैं यही कहूंगा कि जब तक आप प्लानिंग नहीं करते हो किसी स्टार्टअप को करने के लिए, प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। प्लान करो, मैनेज करो। मैनेजमेंट आप लोग समझ ही रहे हो कि मैनेज ऑफ द 4 आइटम्स, मैन, मटेरियल, मनी एंड फैसिलिटी। जब तक आप इसको मैनेज नहीं करोगे, किसी भी स्टार्टअप को आप स्टार्ट नहीं कर पाओगे। वो कोई भी स्टार्टअप हो, बड़ा स्टार्टअप हो, छोटा स्टार्टअप हो, और अपना नेचर क्या बोलता है, अपने नेचर के हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा। सपोज करो कि मुझे लगता है कि हमको उस सोसाइटी के लिए काम करना है, तो मैं ऐसा स्टार्टअप लूंगा जहाँ पे मुझे ट्रस्ट हो जाए, जहाँ पे मैं लोगों को सोशल अवेयरनेस की बात कर सकता हूँ। मुझे लगता है कि प्रॉफिट मेकिंग करना है, तब मैं कंपनी को स्टार्ट करूँगा। सोसाइटी को अगर लगता है कि मुझे और भी कहीं सर्व करना है, मुझे छोटे तौर पे काम करना है, स्टार्ट करना है, कॉलेज में पास आउट हुआ हूँ तो तुरंत मुझे जाकर स्टार्ट करना है, उस केस में आप इंडिविजुअल को काम करोगे, पार्टनरशिप के साथ, के साथ एक पार्टनरशिप करोगे, उससे इसमें कंपनी पेमेंट आपने ही स्टार्ट करोगे। तो ये डिपेंड करता है कि आपका नेचर ऑफ वर्क कैसा है और आप प्लान कैसे कर पा रहे हो। जब तक आप प्लान प्रॉपर नहीं कर पा रहे हो, आपका स्टार्टअप कभी भी स्टार्ट नहीं हो पाएगा, स्मूथली रन नहीं कर पाएगा। और जितने भी आपके कंप्लायंसेस हैं, उस कंप्लायंसेस को आपको कंप्लीट कराना है। आज के टाइम में ईच एंड एवरी कंप्लायंसेस का ड्यू डेट हो गया है, उस ड्यू डेट को आपको कंप्लीट कराना पड़ेगा, अदरवाइज आपको फाइन देना पड़ेगा। पेनल्टीज है, इंटरेस्ट है, फाइन्स है। तो उसको अवॉइड करने के लिए आप अपने कंसल्टेंट के पास गो थ्रू होइए, अपने आप को अपडेट कीजिए। जो भी बजट्स आते हैं उसमें आपको अपडेट करने पड़ेंगे, गवर्नमेंट की क्या प्लानिंग्स आती है उसमें आपको अपडेट करने पड़ेंगे, अदरवाइज आप कभी भी स्टार्टअप स्टार्ट नहीं कर सकते। तो मैं तो यही कहूंगा आप लोगों को कि कोई भी स्टार्टअप स्टार्ट करने के लिए आपको कंटिन्यू उसमें से अपने इंटरेस्ट को शो करना पड़ेगा। जब तक आप इंटरेस्ट नहीं दिखाओगे, कोई भी धंधा को नहीं कर पाओगे। और लीगल कंप्लायंसेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी धंधे के लिए। आपने इसीलिए क्या होता है कि जब आप काम स्टार्ट कर देते हो तो कंप्लायंस करते ही नहीं, प्रॉफिट मेकिंग की काम करते हो। ये प्रॉफिट 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 इज ए पार्ट, बिजनेस का एक पार्ट ही है। ये लॉन्ग टर्म नहीं हो सकता है। लॉन्ग टर्म तभी होगा जब आप कंप्लायंस करोगे, रिस्क मैनेज करोगे। जब तक आप रिस्क मैनेज नहीं करोगे, प्रॉपर डिसीजन नहीं लोगे, आप बिजनेस को या प्रोफेशन को या किसी भी स्टार्टअप को आप आगे कैरी नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या चीज स्टार्ट करना है। किसी भी चीज को स्टार्ट करने के लिए पहले आपको गो थ्रू होना पड़ेगा, उसमें सर्वे करने पड़ेंगे, उसके रिसर्च करने पड़ेंगे, उसके डिसीजन मेकिंग करने पड़ेंगे, उसके नॉर्म्स क्या क्या हैं, उसके कंप्लायंसेस क्या क्या हो सकते हैं, उसके हर्डल क्या क्या हो सकते हैं, इसको मुझे कहाँ तक ले जाना है। ये आपको डिसाइड करने के बाद ही आप किसी भी स्टार्टअप को स्टार्ट कर पाओगे, अदर स्टार्टअप को स्टार्ट नहीं कर पाओगे। इसमें से किसी कुछ पूछना तो बता दो कि क्या प्रॉब्लम हो सकती है किसी स्टार्टअप को स्टार्ट करने के लिए। सारे लोगों का बात क्लियर है कि बिजनेस मॉडल आप कौन सा सेलेक्ट कर रहे हो, आपके आइडियाज कैसे कैसे हैं, ये कैसे करोगे। पहले आइडिया सेलेक्ट करने की बात हम लोग करते हैं कि कौन सा कंप्लायंस लोगों को कहां पे अप्लाई करें। बहुत अच्छा क्वेश्चन किया कि पहले मैं आइडिया लूंगा कि पहले देखिए, पहले जैसे आइडिया तो आप ले लेते हैं, इसके बाद उसको मॉडल को सेलेक्ट करेंगे, है ना, कि मॉडल कौन सा आप लेंगे। मॉडल लेने के बाद आप स्ट्रक्चर डिसाइड करोगे, किस स्ट्रक्चर में मैं इसको सपोज करो कि मुझे एक आइडिया लेना है कि मुझे एक ये बच्चों के डायपर के लिए कंपनी खोलनी है, प्रोडक्ट बनाना है। ठीक है, तो जैसे ही आप मुझे डिसाइड कर लिया कि मुझे एक डायपर है, जितना इसका यूज होगा कल उतना ज़्यादा होगा, इसके मार्केट फिक्स है, जितने ग्रोइंग्स होंगे उसके मार्केट बढ़ते जाएंगे।
तो वैसा आपको आइडियाज लेना है जहाँ पे इसकी मार्केट हो, इसकी सेल की कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जैसे ही आपने आइडियाज को ले लिया, अब उसको मॉडल देख रहे हैं कि किस मॉडल पे काम कर रहे हैं, कैसे कैसे सूट करना। जैसे आप डिसाइड कर लिया कि हमको ये मॉडल डिसाइड कर लिया, इसके बाद आप डिसाइड करो कि एंटिटी कौन सी हो सकती है। इंडिविजुअल पे छोटे तौर पे करना है, या बड़े पे करना है, या किसी फ्रेंड के साथ पार्टनर के साथ करना है, या फिर कंपनी में आना है, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा अपना स्ट्रक्चर बिजनेस के साथ में। और जब तक आप डिसाइड नहीं करोगे, उसके साथ कंप्लायंस को डिसाइड नहीं कर पाओगे। सपोज करो कि आपने डिसाइड किया कि इंडिविजुअल लेना है या कंपनी लेना है, तो कंपनी जैसे आपने डिसाइड किया कि मुझे कंपनी स्टार्ट करना है, तो आप डिसाइड करोगे कि ओपीसी करना है, 1% कंपनी करना है, कि डुबल करना है, कि लिमिटेड कंपनी करना है, कि फॉर्म 8 वाली कंपनी करनी है। आपको खुद से डिसाइड करना पड़ेगा, या आप अपने कंसल्टेंट के साथ इसको डिसाइड करो कि साथ ही मेरी प्लानिंग है कि मैं ये स्टार्ट कर रहा हूँ डायपर वाला, तो मैं किस चीज़ की अपना प्लानिंग को शेयर करूँ कि मुझे इसका फ्यूचर क्या दिख रहा है, इसकी मार्केट क्या है, बिहार में से कस्टमर कितने हैं, मैं रॉ मटेरियल कहाँ से लाऊंगा, कहाँ से मैं लेबर लाऊंगा, कहाँ से मैं मशीनरी को हायर करूँगा, इस सारे के सारे बैंक का फाइनेंस कितना में मुझे आएगा, इस सारे का सारा आपको डिसाइड करना पड़ेगा। एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना पड़ेगा। बिना प्रोजेक्ट रिपोर्ट के हिसाब से आपको अपना देखना पड़ेगा कि डेप्थ कवरेज रेशियो कितना है, रेशियोज कितने हैं, प्रॉफिट मेकिंग ब्रेक इवन कितने टाइम्स में हमारे पास आते हैं, 2-2.5 साल में आते हैं, 3 साल में आते हैं, 5 साल में आते हैं, या लॉस मेकिंग है। इनकेस आपको ये भी डिसाइड करना पड़ेगा कि अगर इसमें हार्डल सपोज गवर्नमेंट का ऐसा कोई नॉर्म्स आ जाता है, इस तरह के ट्राइब को मुझे नहीं फेल करने हैं, तो फिर आप प्लान कैसे करोगे? क्योंकि गवर्नमेंट की जो करस्पॉन्डिंग ये जो नीतियाँ आती हैं, उसके हिसाब से आपका बिजनेस डिसाइड करता है। जैसे मैं आपको लाइव एग्जाम्पल बताता हूँ, बिहार में भी जो इथेनॉल है ना, इथेनॉल की जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां खुली है, सब लॉस मेकिंग कंपनियां जा रही है। इसका रीजन आप लोगों ने कभी स्टडी किया इसको? शुगर केन का जो इथेनॉल बन रहा है, जो पेट्रोल में यूज कर रहे हैं हम लोग, वो कंपनियां भी लॉस में जा रही है। बहुत हमारे क्लाइंट ने बहुत ही इन्वेस्टमेंट किया था, और राइट नाउ इज मेकिंग लॉस ड्यू टू गवर्नमेंट नॉर्म्स। क्योंकि प्रोडक्शन इतना ज्यादा हो गया है, और इथेनॉल जो है जो मिक्स करना है वो उसकी क्वांटिटी कम है। इथेनॉल के प्रोडक्शन में बिहार है, उड़ीसा है, तो हमारे यहाँ प्रोडक्शन इतना ज्यादा हो गया है, अब वो हम लोग अगर उड़ीसा को शेयर करना चाहते हैं, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाता है, तो इसके कारण मेरा बिजनेस सक्सेस नहीं कर रहा है। तो गवर्नमेंट जो आपका स्ट्रक्चर है, उसके कारण लगभग बिजनेस में लॉस हो रहे हैं। तो गवर्नमेंट को रिप्रेजेंटेशन देना पड़ता है। जितने भी एंटिटीज हैं जो इस तरह के बिजनेस में इन्वॉल्व है, उन्होंने रिप्रेजेंटेशन दिया कि सर जो ये क्वांटिटी है पेट्रोल की इथेनॉल में मिक्स करने की, उसको बढ़ाई जाए। गवर्नमेंट इसमें डिसाइड कर रही है। तो आपको इस सब हिसाब से भी प्लान करना पड़ेगा, कि जब तक आप प्लान इस तरह से नहीं करोगे, आपका बिजनेस कभी भी प्रॉफिट मेकिंग नहीं हो सकता है। आपने कहा ना कि पहले मॉडल डिसाइड, पहले आइडिया डिसाइड करेंगे, इसके बाद सिस्टम मॉडल को डिसाइड करेंगे, इसका स्ट्रक्चर डिसाइड करेंगे, इसके बाद कंप्लायंस डिसाइड करेंगे। ये सब डिसाइड करने के बाद से आप तब प्लान करोगे कि मुझे कहाँ से करना है, मुझे फंडिंग कहाँ से लाना है, वर्क फोर्स कहाँ से लाना है, मशीनरी कहाँ से मुझे हायर करनी है। ये सारे डिसाइड करने के बाद ही आप एक बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। अपने यहाँ क्या होता है कि बस स्टार्टअप करना है, कोई मैंने प्लान नहीं किया, मैं किसी कंसल्टेंट के यहाँ गया, मैं जेसी का रजिस्ट्रेशन ले लिया, मैं पीएफ का रजिस्ट्रेशन ले लिया, मैंने एस का रजिस्ट्रेशन ले लिया, और पता चला कि मुझे इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है, न ये साई की जरूरत है, न पीएफ की जरूरत है, न और किसी की जरूरत है, और मैं कंप्लायंस तो सारा कंप्लीट कराते जा रहा हूँ। तो ये आपका स्टार्टअप स्टे नहीं करेगा, ये विद इन 6 मंथ 9 मंथ 1 ईयर में ही आपका ये स्टार्टअप फिनिश हो जाएगा। तो मुझे ऐसा स्टार्टअप ही करने की जरूरत है। प्राइवेट लिमिटेड और पार्टनरशिप में क्या रहती है? क्वेश्चन है कि प्राइवेट लिमिटेड हमको स्टार्टअप करना है, तो प्राइवेट लिमिटेड में करना है कि पार्टनरशिप में करना चाहिए? बहुत गुड क्वेश्चन है इनका। तो पहले डिसाइड करो कि एंटिटी जैसे आपने पार्टनरशिप है, तो विजिबिलिटीज नहीं है। पार्टनरशिप में जब भी आप रजिस्टर कराओगे अपने बिहार में, तो 5000 के स्टैम्प पर रजिस्ट्रेशन होते हैं। कोई भी पार्टनर अगर आपको चेंज करना पड़ेगा, तो आपको रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाना पड़ेगा। आज के टाइम में कोई फ्री नहीं होता है कि रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर हो जाए। तो ऐसा कोई मैकेनिज्म जहां पे आप इजीली अपने घर बैठे डिजिटली उसको फाइल कर पाओगे, तो कंपनी इज रजिस्टर। अगर मैं काम कर रहा हूँ कि हमारी कंपनी का है, हमारे पार्टनरशिप का काम बहुत बड़ा है, 500 करोड़ का मैं काम कर रहा हूँ, अगर आपके पास ऐसा कोई मैकेनिज्म हो कि मैं उसको चेक कर पाऊँ कि मेरा पार्टनरशिप या मेरा कंपनी कितने के लिए काम कर रही है, 500 करोड़ का टर्नओवर है, 200 करोड़ का टर्नओवर है, 250 करोड़ का टर्नओवर है, 140 का टर्नओवर है,
तो पार्टनरशिप में ऐसा कोई भी मैकेनिज्म नहीं है कि कोई भी थर्ड बॉडी आपको उस पर असिस्ट करता है। लेकिन कंपनी में है, मिनिस्ट्री ऑफ कंपनी अफेयर्स के साइट पे जाओगे, आरओसी के साइट पे जाओगे, वहाँ से डेटा को डाउनलोड करोगे, डाउनलोड करके देख लोगे इसका बिजनेस मॉडल क्या है, बिजनेस स्ट्रक्चर कितना है, इसका प्रॉफिट एंड लॉस कितने आ रहे हैं। तो आपके पास जैसे एक विजिबिलिटी आ जाती है कि ये आदमी 1000 का है, करोड़ में काम कर रहा है, 5000 में काम कर रहा है, इंडिविजुअली काम कर रहा है, जैसे आपके पास डेटा आ गया ना तो आपको एनालाइज करने में बहुत ही ईजी करने लगेगा। तो इसलिए ऑलवेज जिस तरह का धंधा हो आपका, अब बेहतर होगा कि आप पार्टनरशिप पे जाओ। दूसरी बात, ये तो मैंने नॉर्मल फैमिली में बता दिया। अब मैं बात करता हूँ टैक्स प्लानिंग। अब इसमें टैक्स के बारे में कैसे करेंगे, टैक्स के इफेक्ट को भी देखेंगे। जैसे कि आप पार्टनरशिप में जाओगे तो जो टैक्स का रेट है वो 30% होता है, ठीक है ना। लेकिन कंपनी में डिपेंड करता है 20% होगा, 25% होगा, ठीक है, एज पर टर्म लेवल पार्टनरशिप का फिक्स है। दूसरी बात, एक्सपेंस की मैं बात करूँ कंपनीज में और पार्टनरशिप में, तो कंपनीज में बहुत सारे स्कोप्स होते हैं एक्सपेंस को मर्ज करने का, लेकिन पार्टनरशिप में लिमिटेड स्कोप्स होते हैं। दूसरा है कि बाहर से फंडिंग की बात करते हैं हम लोग, है ना, गवर्नमेंट फंडिंग की बात करते हैं या फिर लोन की बात करते हैं, कंपनी से ईजियर एंड पार्टनर। इसलिए ऑलवेज ट्राई करो जब भी बड़ा प्रोजेक्ट करना है कंपनी के साथ पार्टनरशिप में नहीं, ठीक है। उन्होंने बोला कि सब वाटर में धंधा स्टार्ट करो, पानी पीने वाला, है ना। कोई भी आप अगर कंज्यूमेबल आइटम स्टार्ट करोगे ना, कोई भी कंज्यूमेबल आइटम स्टार्ट करोगे, फसाई के लाइसेंस देने वाली करोगे, है ना। जब तक आप फसाई के लाइसेंस को नहीं लोगे, कोई भी आप एक आइटम सेल भी कर रहे हो ना, खाने पीने वाला है, उसमें भी आपको लाइसेंस देने होता है। और अगर वाटर में आप जाते हो, बड़े वाटर में जाते हो, तो आपको पॉल्यूशन भी लेना पड़ेगा, वाटर भी लेना पड़ेगा, सफाई का लाइसेंस भी लेना पड़ेगा, है ना। और वेस्ट मैनेजमेंट का जिसको ताकि आप बॉटलिंग को यूज करोगे, देखोगे कहाँ पे उसका इस तरह के जो भी प्रोफेशन में आपके अगर स्टार्ट करना चाहते हैं छोटे लेवल पे, बड़े लेवल पे, तो क्या क्या कंप्लायंसेस आ सकते हैं, इसका आपको नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। पता चला कि आपने स्टार्ट किया आपने और किसी का कंप्लायंस लिया ही नहीं है और डिपार्टमेंट का नोटिस आ गया, पेनल्टी अमाउंट बहुत ह्यूज हो जाती है उस केसेस में। तो आपको उस चीज़ को मैनेज करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि साहब क्या क्या कंप्लायंसेस हमारे पास कर रहे हैं, क्या क्या कंप्लायंसेस होने चाहिए, हमें कितना मिटिगेट कर पा रहे हैं। और कंप्लायंसेस तभी लिए जब आपको रिक्वायर्ड, अदरवाइज कभी कभी क्या होता है कि आदमी कंप्लायंसेस इतना ज़्यादा ले लेता है और इसकी रिक्वायर्ड नहीं होती है, कंप्लायंस का फीस सबको ज़्यादा नहीं करना पड़ता है। किसी भी प्रोजेक्ट की रिक्वायर्ड चाहिए कैपिटल उसका बेनिफिट क्या है? क्वेश्चन है कि जब मैं स्टार्टअप किया तो आपने डिसाइड किया मुझे फंड कितने चाहिए हो, है ना। आपने एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाया, इसमें आपका ओन कंट्रीब्यूशन कितना होगा, बाहर की फंडिंग कितनी होगी, बैंक आपको कितना फाइनेंस है। सपोज करो कि मैंने स्टार्ट किया जिससे कि इनको 1 CR हमको प्रोजेक्ट कॉस्ट लगेगा, बैंक को जैसे आप फाइनेंस करोगे, बैंक बोलता है कि आपका ओन मार्जिन होना चाहिए 25% इज ओन मार्जिन एंड 75% इज फ्रॉम द बैंक। अगर आपका ओन मार्जिन 25% है अब है ना, 75% आप बैंक तभी आपको कॉपरेट करेगा जब आप अपना स्टार्ट करेंगे। और किसी के स्टार्टअप करने में थोड़े इनिशियली बहुत हार्ड होते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करने पड़ेंगे, कभी फंड नहीं मिलेगा, कभी मैन नहीं आएंगे, कभी मशीनरी आपके पास नहीं आ पाएगी, एक्सपोर्ट करने के लिए मशीनरी बाहर तक मशीनरी ला रहे हो। तो सारे हडल्स को खत्म करने के लिए आपको बिहार में अपने जो स्टार्टअप स्टार्ट हो रहा है 1 विंडो हो गया है, एक बार आप अपने पेपर्स को डालो, सारा क्लियर होकर चला है। आपको लैंड का लोकेशन किसने इंप्रूव हो गया है, क्योंकि सबसे बिहार में अपने आप हार्डल्स है लैंड को लेने में बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो अगर स्टार्टअप जैसे स्टार्ट कर रहे हो तो उसके हिसाब से आपको डिसाइड करना पड़ता है कि क्या क्या है। और जैसे कि मैं बता रहा हूँ आपको कि डेस्टिनेशन के लिए और भी कंप्लायंसेस की जरूरत जो भी पड़ती है, आपको कंप्लायंस को कंप्लीट कराना बहुत इंपॉर्टेंट बात हो जाता है, वो किसी भी सेक्टर में हो। इधर वो आप अपना ड्राइंग स्टार्ट कर रहे हो या कोई भी स्टार्ट कर रहे हो, तो जैसे ही स्टार्ट करोगे आपको अपना कंप्लायंस को कंप्लीट कराते हुए आपको काम नहीं करना पड़ा। जैसे ही आपने अगर बिजनेस मॉडल को डिसाइड कर लिया है
बिजनेस मॉडल डिसाइड करने के बाद से अब टैक्स की बात करते हैं हम लोग कि कौन सी यूनिटी में कितने कितने टैक्स का परसेंटेज आता है, ताकि आप प्रॉपर उसको प्लानिंग करके अपने काम को कंप्लीट कर पाएंगे। जब तक आप इस प्लानिंग को नहीं करेंगे और ये काम को नहीं कर पाएंगे, आप बेहतर एक स्टार्ट को नहीं कर पाएंगे। उसके हिसाब से आपको अपनी प्लानिंग को इतनी स्ट्रांग करनी पड़ेगी कि सारे के सारे काम आपको स्मूथली रन करें। टैक्स कंसल्टेंट को टैक्स फाइलर नहीं बनाइए, टैक्स प्लानर बनाइए और उसको पार्टिसिपेट करिए बिजनेस में कि केवल जीएसटी का रिटर्न फाइल नहीं करें, पीएफ का रिटर्न फाइल नहीं करें, आपके प्रोजेक्ट को ओवरव्यू करें, प्रोजेक्ट को गो थ्रू करें और प्रोजेक्ट के साथ साथ एसोसिएट कराएं उनको। अदरवाइज केवल आप टैक्स कंसल्टेंट को टैक्स फाइलर बनाएंगे, ना आपकी कोई प्लानिंग हो पाएगी, ना आपका कोई बिजनेस हो पाएगा, किसी तरह से आप बिजनेस को रन करा पाएंगे और इसकी बिजनेस की स्टेबिलिटी कहीं भी आपको आगे नहीं जा पाएगी। तो मैं ऑलवेज यही कहूँगा आप लोगों से, जो भी स्टार्टअप कर रहे हैं, पूरा प्रोजेक्ट रिपोर्ट के साथ में, प्लानिंग के साथ में, आइडियाज के साथ में, प्रॉफिट मेकिंग कितनी होगी, पूरा आपको एक अपना प्रोजेक्ट रिपोर्ट के साथ में इस स्टार्टअप को स्टार्ट करें। अदरवाइज कहीं भी कोई स्टार्टअप आपका सक्सेस नहीं करेगा। विथ ऑल कंप्लायंसेस, विथ ऑल द लीगल मैटर्स और गवर्नमेंट प्लानिंग, जब तक ये कंप्लीट नहीं करेंगे आपका स्टार्टअप सक्सेस नहीं हो पाएगा। सर माय क्वेश्चन इज कि अगर हमारे पास कैपिटल है, हमने प्लानिंग भी कर ली, हमने स्टार्टअप के लिए सब कुछ रेडी कर लिया, लेकिन जो कंट्री की जो रिसेशन बढ़ रही है, बीओबी कम होते जा रहा है, और क्या गारंटी है कि मेरा जो स्टार्टअप है वो आगे जाके मेरे जो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा, मेरे पास अनलिमिटेड एबिलिटी नहीं होगी। क्वेश्चन है कि मुझे कैसे डिसाइड करना पड़ेगा हमारे पास अनलिमिटेड एबिलिटी नहीं हो सकती है। आप प्लानिंग करोगे कि मेरा सेल कितना है, मेरे कस्टमर कितने हैं, मैं परचेज कहाँ से करूँगा, मेरा साइकिल पीरियड कितना है, पेमेंट करूँगा। बीओबी मेरे हाथ में नहीं है, कंट्री में कितना एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है वो मेरे हाथ में नहीं है, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो मेरी प्लानिंग तो वहाँ पे खत्म हो जाएगी ना। आप डेटा को एनालाइज कैसे करते हो? प्रीवियस ट्रेंड को कि प्रीवियस से अगर जो मैं आइटम को सेल कर रहा हूँ, इसके कस्टमर कौन कौन से हैं, मेरा प्रोडक्शन कॉस्ट कितना, मेरे कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कितने हैं, हमारे सेलर्स कौन से हैं, हमारी यूनिट क्वांटिटी हमारी कितनी है। पहले मैं डिसाइड करता हूँ कि आपके कस्टमर कितने हैं, हमारा फिक्स कॉस्ट कितना है, रेवेन्यू कॉस्ट कितना है, मार्केट में कहाँ से ला रहा हूँ, मेरा इंटरेस्ट कॉस्ट कितना हो रहा है। जब तक आप पूरे को डिसाइड नहीं कर पाओगे, आप किसी भी कॉस्ट का एलिवेशन नहीं कर पाओगे। आपकी पर आपका पेमेंट साइकिल पीरियड क्या है, डेटर का साइकिल पीरियड क्या है, फिर टोटल का टोटल आप प्रोजेक्ट कॉस्ट से डिसाइड करोगे ना, तभी तो आप डिसाइड करोगे खबर फैसिलिटी कितना। सपोज करो कि आपका जो डेटर का पेमेंट है, आप किसी आइटम को सेल कर रहे हो वो 25 डेज का है और डेटर का पेमेंट 5 डेज का है, नो डाउट फैसिलिटी ज़्यादा नहीं। तो आपको ये पूरी प्लानिंग के साथ, आपके पूरे प्रोजेक्ट रिपोर्ट के साथ ही आपको डिसाइड करनी पड़ेगी कि आपको स्टार्टअप करना है, अदरवाइज आप स्टार्टअप नहीं करा पाओगे। और इसका बीपी निकालने के लिए सबसे इजी वे होता है कि जो नॉर्मल कस्टमर है, इन वर्स्ट केसेस आप सेल कितना कर पाओगे। आज मुझे धंधा स्टॉक में कर दूँ तो मेरे पास सेल कितने होंगे, बीपी के लिए सबसे बेस्ट वे होता है कि आप उसको स्टार्ट फ्रॉम वन डे कस्टमर से स्टार्ट करोगे। आज मेरा कस्टमर मेरा एक ही सेल करेगा तो मैं इसको अचीव करके इन 1 ईयर में इसको कितना टारगेट कर पाऊंगा और कॉस्ट मिनिमाइज करने की कोशिश करूँगा। मटेरियल को और मैनेज करो, मैसेनरी आपके पास प्रॉम्प्ट होना चाहिए, तब आप उसको मिनिमाइज कर पाओगे। सब कुछ आपके कंट्रोल में होता है, आपके पास अगर डेटाज नहीं है तो फिर आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे। और प्रीवियस ट्रेंड क्या बोल रहा है आपका, और इस तरह के सिमिलर जॉब में अगर कोई काम कर रहा है कोई भी आदमी, उसको आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, उसके साथ आपको डेटा को लेना पड़ेगा। जो क्वेश्चन है कि हमारे पास आइडिया तो बहुत है, हाउ टू परफॉर्म द आइडियाज। हाँ, स्टार्ट कैसे करें, ये भी करना है, वो भी करना है, ये भी करना है। फ्रॉम स्टार्ट हो कैसे करते हैं, पहले प्लानिंग करोगे ना, डिसीजन मेकिंग करोगे, रिस्क टेकिंग कैपेसिटी आपके पास कितनी है। जब तक आपके पास रिस्क टेकिंग कैपेसिटीज है और उसके साथ से स्टेबिलिटी कितनी है, प्रॉफिट मेकिंग कितनी है, कंप्लायंस इसमें कितने हैं, सारे एस्पेक्ट को डिसाइड करने के बाद ही किसी को स्टार्ट, जितने भी आपके पास आइडियाज है ना, सबका फिर राइट डाउन करो कि ये इस प्रोफेशन में जा रहा होगा, इस प्रोडक्ट को मैं अगर लॉन्च कर रहा हूँ, इसमें क्या क्या रिस्क टेकिंग्स हो सकते हैं, कहाँ से उसको मैनेज कर पाएंगे, कंप्लायंसेस कहाँ से हमारे पास आएंगे। जो भी आप इस प्रोफेशन में पहले से हैं उनको बीट करने की जरूरत नहीं है, आप उनसे बेहतर करने की जरूरत है।
देखिए कुछ में हर्डल क्या क्या प्रॉब्लम वो फेस कर रहे हैं। अगर मैं कोई आइटम अगर सेल कर रहा हूँ तो कस्टमर को क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हो रही है। जैसे मैं एक सर्विस प्रोवाइडर हूँ तो मैं देखता हूँ कि जो भी हमारे रिटर्न फाइल करने लोग जो भी कस्टमर आते हैं उनको क्या क्या प्रॉब्लम OTP की प्रॉब्लम्स आती है, तो मैं OTP वाला नहीं देता, मैं डिजिटल साइट करा लेता हूँ ताकि उनको ये OTP वाला प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको अपने बिजनेस के हिसाब से अपने मॉडल को चेंज करने पड़ेगा कि कौन से मॉडल से मुझे ज़्यादा कस्टमर सेटिस्फैक्शन ज़्यादा होगी। ये जब तक आप नहीं डिसाइड कर पाओगे किसी भी आइडियाज को आप मॉडल में कन्वर्ट नहीं कर पाओगे और उसको क्लोज नहीं कर पाओगे। तो ये जितने भी आपके पास आइडियाज आ रहे हैं ना उनको आप मॉडल में बनाओ। मॉडल बनाने के बाद उसमें रिस्क टेकिंग कैपेसिटी कितनी है, उसमें डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी कितनी है, उसमें स्टेबिलिटी कितनी है, कंप्लायंस उसमें कितना है, ये सारे सब को डिसाइड करो। BP आपका कितने टर्म्स के बाद आता है, इसके बाद ही आप डिसाइड कर पाओगे कैसे करना है। अदरवाइज आपका स्टार्टअप नहीं होगा। विद इन 6 मंथ केवल प्रॉफिट मेकिंग के लिए काम करोगे तो फिर नहीं होगा, क्योंकि डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी आप में है लेकिन उसको प्लान आप नहीं कर पा रहे हैं, उसको मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, उसको एक्सिक्यूट नहीं कर प्लानिंग ने वो कर दिया लेकिन उसको मैं एक्सिक्यूशन नहीं कर पा रहा हूँ। कम पैसे से आगे मैं इसको एक्सिक्यूट नहीं कर पा रहा हूँ। तो सारे एस्पेक्ट को जब आप डिसाइड नहीं कर पाओगे तब तक आप किसी भी मॉडल को सक्सेस नहीं कर पाओगे। Thank you, sir. That was really a wonderful session. I would like to call Mr. Arya Kumar Ji, sir, to please say a few words. Sir. Hello, good afternoon. Good afternoon. तो टीम, मेरा नाम आनंद गिरी है और ये जो सेशन आप लोगों ने सुना है इसका रेलेवेंस ये है कि देयर इज अ कोट दैट सेज कि वर्ल्ड में दो चीज़ें सर्टेन हैं। एक बेंजामिन फ्रैंकलिन का एक कोटेशन है जो कहता है कि वर्ल्ड में दो चीज़ें सर्टेन हैं, एक तो टैक्सेस और दूसरा डेथ। सो सर जो है वो एक्सपर्ट हैं टैक्सेस के बारे में। वी थॉट कि आप कुछ भी अगर स्टार्टअप आप सोचते हैं तो इट इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड कि आप किस तरीके से टैक्स की प्लानिंग अंडरस्टैंडिंग मैनेजमेंट आप कर सकते हैं। सो ही इज़ अ वेरी गुड रिसोर्स पर्सन प्रैक्टिसिंग चार्टेड अकाउंटेंट हियर इन पटना ओनली। अब मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट करता हूँ ISTD को। ISTD इज द इंडियन सोसाइटी फॉर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। तो इस तरीके के जो भी रिसोर्स पर्सनल्स हैं वी आर एसोसिएटेड टू प्रोवाइड मेंटरशिप टू अपकमिंग रिसोर्सेज। तो आपकी तरह जितने भी स्टूडेंट्स हैं या प्रोफेशनल्स हैं उनको हम लोग गाइडेंस देने की कोशिश करते हैं। मैं प्रोफेशनली एसोसिएटेड हूँ इंश्योरेंस के साथ। तो आप कुछ भी स्टार्टअप अगर करते हैं, प्लानिंग करते हैं, तो एक चीज़ आपने ज़रूर गौर किया होगा कि सोसाइटी में अगर कोई अनफॉर्चुनेट डेथ हो जाती है तो सोसाइटी पहला सवाल क्या पूछता है उस फैमिली से? अगर किसी व्यक्ति का अनफॉर्चुनेट डेथ हो जाता है, अनटाइमली डेथ हो जाती है, तो समाज पहला सवाल उस फैमिली से क्या पूछता है? तो आप जो भी बिजनेस प्लान कर रहे हैं इट इज़ वेरी मच राइट, बिकॉज हम लोग दशरथ मांझी के जमीन को रिप्रेजेंट करते हैं जिन्होंने बिना किसी मेंटरशिप के, बिना नॉलेज के एक पहाड़ से रास्ता निकाल दिया था। तो बिहार के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप लोग ज़रूर कुछ डिफरेंट सोचें, अलग सोचें। उसके लिए डेयरिंग चाहिए और वो बिहार से बेहतर और कहीं नहीं हो सकता है। आपके कॉलेज में इस तरीके का एक स्टार्टअप है जहाँ पे आप इंडस्ट्री के लोगों से इंटरेक्ट करते हैं। मेरी बात रचना मैडम से हो रही थी, अशोक सर के साथ हो रहा था, तो मुझे बहुत प्राउड फील हुआ कि इस तरीके का इंटरेक्शन आपके सोसाइटी में होता है। इन केस अगर आप किसी भी तरीके का स्टार्टअप करते हैं तो वेदर इट इज़ लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस, इस तरीके के किसी भी सपोर्ट के लिए, जानकारी के लिए वी विल ऑलवेज बी अवेलेबल। सो व्हेनेवर इट इज़ रिक्वायर्ड कि आप किसी भी तरीके का इंश्योरेंस प्लानिंग या टैक्स प्लानिंग करना चाहते हैं तो वी विल ऑलवेज बी सपोर्टिंग द स्टूडेंट्स ऑफ सेंट जेवियर यूनिवर्सिटी। तो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस दिस टाइम हियर। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। Thank you, sir, for your valuable insights and guidance. As we come to the end of this session, I call Ayush Case, Acting Coordinator, Startup Cell, to propose the vote of thanks. Good morning to you all present here. I, Ayush Case, Acting Coordinator of Startup Cell, Xavier University, Patna, consider my privilege to propose the vote of thanks for today's session on Startup India Mission
opportunities for college students. I would like to express my sincere gratitude to our Honorable Vice Chancellor, Father Dr. Martin Porras SJ, Registrar Father Dr. Sherry George SJ. I express my heartfelt thanks to our esteemed resource person, Mr. Dheeraj Kumar and Mr. Anand Giri for sharing their valuable insight, practical knowledge and real-life experience related to startup and the Startup India. I would also like to extend my sincere thanks to the Department of Mass Communication for their excellent support in photography and videography. I also thank all the respected faculty members for their cooperation and support in making this program a success. A special appreciation goes to all the students for their active participation and thoughtful interaction during the session. One small notice, to inform to all students that after 2 or 3 days, we will announce a pitch competition. You all are invited to participate in it. Students who wish to participate in this competition, you must visit the Startup Cell office that is in Brito Block, room number 39. Jai Xavier, Jai Bharat.